So far we have already seen how to implement this kind of table using the loop, and how loop can be helpful to create these tables, right? And then we saw an interactive example as well, where what is the initialization, then what is the destination, and then what is the increment decrement we saw. So any loop has these three components: initialization, condition, and increment decrement. We saw this already. सर स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, मतलब स्क्रीन नहीं दिख रही. 1 minute. Sorry. Visible now? हाँ जी सर. Okay, great. So we have seen that the loop has three components. One is initialization, condition, and increment decrement. So whenever you have to implement any such situation, at every point of time, what you have to do is you have to identify the situation, that what is initialization, from where your process is going to start. Then कंडीशन मीन्स स्टार्ट का हमने पता कर लिया कि प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से हुई, लेकिन उसके बाद प्रोसेस रुकेगी कहाँ ये भी हमें पता करना है. और उसके बाद इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज इट डिसाइड्स how you will reach from initialization to destination, from how you will start from source to destination. So that is the main important thing. These three things are the main components that we have discussed. And the example we saw last time, one was into the increment loop, and another one was into the decrement loop. तो ये चीजें हमने देखी थी. इतने पार्ट में किसी को कोई डाउट है? आरती, उत्सव. नो सर. Okay. So now we are going to see some more examples in this. So, for example, what you can do is, one thing is, like, there is factorial. So do you know about the factorial? Do you know about the factorial? Sab, Aarti? नो सर, आई डोंट नो. Okay, so factorial is a calculation. Basically, this is not related to the programming. Basically, this is a factorial. It is a mathematical function. So, suppose if you have to find the factorial of 5. So, if you have to find the factorial of 5, so what you have to do is you have to do 5 into 4 into 3 into 2 into 1. So, whatever the result will be here, this will be the answer of this. So, this will be 120. Right, so this is the answer for this. So factorial is basically to calculate a value of number by multiplying it till 1. राइट, तो अगर 5 दिया है तो 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा. 6 दिया है तो 6 5 4 3 2 1 का मल्टीप्लीकेशन होगा. एंड दैट्स हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल. राइट. नाउ that now our challenge is that we have to implement this factorial in we have to implement this factorial in our programming. हम इसको प्रोग्रामिंग में इंक्लूड करेंगे कि जैसे ही हम किसी को कोई नंबर दें तो इमीडिएटली उसका फैक्टोरियल कैलकुलेट होके आ जाए. राइट. सो सिंपली व्हाट विल डू इज, पहले तो हम यूजर से नंबर लेते हैं और उसको इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं. तो वी हैव टेकन एंटर द नंबर फॉर द फैक्टोरियल. हमने नंबर ले लिया. I am giving this example so that you can relate and you can try implementing it by yourself. We have taken this number from users. अब now suppose this number has come. अब नंबर को हम यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए स्टार्ट करेंगे. तो कैसे कैलकुलेट करना है? बेसिकली कैलकुलेशन हमें क्या करना है, अगर यहाँ पे 5 दिया है तो हमें 5 से 4 तक के सारे कैलकुलेशन करने हैं. तो इसमें एक तरीका ये है कि पहले हमने प्रिंट किया, पहले हमने यहाँ पे नम यहाँ पे फैक्ट वैल इज इक्वल टू हमने क्या किया कि हमने यहाँ पे दिया
नम इंटू 1। ओके, दूसरा फिर फैक्ट वैल इज इक्वल टू फैक्ट फैक्ट अंडरस्कोर वैल। अब इसको मैं आपको पूरा मैनुअली ही कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। तो ये पहला स्टेप ये हुआ, और फिर नम माइनस इज इक्वल टू 1, राइट। अब यहाँ पे फैक्ट वेल इंटू नम, फिर नम माइनस इज इक्वल टू नम माइनस इज इक्वल टू 1, फिर फैक्ट वेल। ओके, तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये कैलकुलेट होगा। अगर अगर सपोज यहाँ पे 5 दिया है, ठीक है, फैक्ट अंडरस्कोर वेल इंटू नम, ठीक है, फिर नम माइनस इज इक्वल टू 1 एंड अगेन फैक्ट वेल, राइट। तो ये काम हमें यहाँ पे 3-4 बार करना पड़ेगा, राइट। तो जब हम यहाँ पे हमने 3-4 बार काम किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, फैक्ट वेल, इसके पहले हमें करना पड़ेगा फैक्ट अंडरस्कोर वेल इज इक्वल टू 1 हमने इनिशियलाइज किया, राइट। और इसके बाद यहाँ पे इसका आउटपुट क्या आएगा, नम इंटू 1। तो नम अगर यहाँ पे सपोज 5 दिया है, यूजर ने 5 इंटर किया है, तो यहाँ पे 5 इंटू 1, तो यहाँ पे फैक्ट वैल्यू में वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। अब नम की वैल्यू क्या हुई, 5 - 1, तो नम की वैल्यू हो गई 4, राइट। और यहाँ पे फिर क्या आएगा, 5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 20। और यहाँ पे नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, नम की वैल्यू हो जाएगी, फैक्ट वैल्यू की वैल्यू 5 थी, सॉरी, नम नम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 - 1, यहाँ पे 3 हो जाएगी। फिर अब यहाँ पे क्या हुआ, फैक्ट वैल्यू की वैल्यू 20 है, 20 इंटू नम की वैल्यू आ गई 3, यहाँ पे अब क्या हो गया, 60, राइट। नाउ नम की वैल्यू 3 - 1 इज 3 - 1 इज इक्वल टू 2। अब फैक्ट वैल्यू की वैल्यू क्या होगी, फैक्ट वैल्यू की होगी 60 इंटू 2, और ये हो जाएगा हमारा 120। और फिर इसके बाद फिर क्या आएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू 1। और फिर लास्ट में हम इसको आप मल्टीप्लाई करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 120 इंटू 1 120, और ये हमारा 120 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अंडरस्टूड कि मैंने क्या किया। जी सर। ठीक है, तो ये मैंने आपको ये कैलकुलेशन मैनुअल करके दिखाया है, अभी यहाँ पे कोई लूप नहीं लगाया है। अब यहाँ पे अगर सपोज 10 दिया है, तो यही प्रोसेस 10 बार चलेगी। अगर 100 दिया है, तो यही आपको 100 बार लिखना पड़ेगा। तो जितनी बार यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको तो पता नहीं कि यूजर क्या एंटर कर देगा, तो आप कितनी बार लिखोगे, आपको आप तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि यूजर क्या वैल्यू देगा। यूजर तो कुछ भी वैल्यू दे सकता है, तो आप गेस नहीं कर सकते। तो अब अगर इसको सही तरीके से लिखना है, तो अब हम यहाँ पे इसके लिए हम लूप लगाएंगे। तो लूप लगाने में सबसे पहले फिर से वही काम यहाँ पे हमने यहाँ पे लिया, और इन फैक्ट वेल को हमने 1 से इनिशियलाइज करा दिया। अब हम यहाँ पे लूप लगाएंगे। क्या लूप लगाएंगे, भाई, और यहाँ पे हमारी नम की वैल्यू है, ठीक है, भाई नम इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन भी कर दोगे तो भी चलेगा, ग्रेटर देन 1। ओके, वाइल नम इज ग्रेटर देन 1। और फिर यहाँ पे क्या किया, फैक्ट अंडरस्कोर वैल इज इक्वल टू फैक्ट अंडरस्कोर वैल इनटू नम, राइट। एंड फिर हमने किया नम माइनस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इससे हमारा जो पूरा कैलकुलेशन है वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ फिर से। तो फैक्ट तो मैं एक बार बस प्रिंट करा के आपको दिखा देता हूँ, फैक्टोरियल वैल्यू इज, और यहाँ पे हमने दे दिया फैक्ट अंडरस्कोर वैल्यू, राइट। एक बार मैं एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ओके, ये स्पेलिंग गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने दिया 5, और देखो इसने यहाँ पे 120 प्रिंट कर दिया। अभी हम यहाँ पे भी वैल्यू देंगे। यहाँ पे क्या है, अच्छा,
पर ये चीज हमने लिख रखी है, इस वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हैं, मतलब कंटेक्स्ट समझने के लिए है, प्रोग्रामिंग के लिए नहीं है ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई कि हमने यहाँ पे 5 दिया और इसने यहाँ पे हमें 120 कैलकुलेट करके दे दिया। ओके, अब हमें इसको समझना है, तो समझने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक छोटा सा यहाँ पे हम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट बनाते हैं। लेट मी शेयर माय एक्सेल। यहाँ पे एक्सेल हम शेयर करते हैं। तो फिर हम्म, ये मैं आपको डिटेल में समझाने के लिए कर रहा हूँ कि ये चीजें कैलकुलेट कैसे हो रही है। राइट, तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, हमारे पास है, यहाँ पे हमने यूजर से वैल्यू इंटर कराई है 5। ठीक है, तो अब आप हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज हैं। ये हमारी किस चीज की वैल्यू है, ये हमारे पास नम की वैल्यू हमारे पास आई है। तो हमारे पास एक नम है, दूसरा फैक्ट अंडरस्कोर वैल है, तीसरा है कंडीशन कि नम इज ग्रेटर देन 1। ये हमारे पास कंडीशन। ठीक है, तो जब हमारी प्रोसेस स्टार्ट हुई तो हमारी नम की वैल्यू क्या है, 5 एंटर हुई। फैक्ट वैल हमारे पास, हमने यहाँ पे 1 इनिशियलाइज किया, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे 1 इनिशियलाइज किया है। ठीक है, फैक्ट वैल इज इक्वल टू 1 हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया हुआ है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया। अब कंडीशन चेक हो रही है, नम की वैल्यू 5 ग्रेटर देन 1। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अभी तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। कंडीशन ट्रू होने पे क्या होना है, कंडीशन ट्रू होने पे पहला स्टेटमेंट है हमारे पास, फैक्ट अंडरस्कोर वैल इज इक्वल टू फैक्ट अंडरस्कोर वैल इनटू नम। राइट, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। ये फैक्ट वैल की वैल्यू है हमारे पास 1 और नम की वैल्यू है 5, तो इनका मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ जाएगा 5। ठीक है, दूसरा है हमारे पास नम प्लस इज इक्वल टू 1, मतलब नम इज इक्वल टू नम प्लस 1। तो अभी सॉरी -1, नम माइनस इज इक्वल टू 1, नम माइनस इज इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे अभी नम की वैल्यू अभी हमारे पास यहाँ पे क्या थी, 5। तो यहाँ पे अब क्या होगा, 5 - 1, तो नम की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो हमारे पास फाइनली पहला स्टेप कंप्लीट होने के बाद फैक्ट वेल की वैल्यू ये है और नम की वैल्यू ये है। ये है, ये पार्ट है, दिस इज बिफोर स्टार्टिंग स्टार्टिंग ऑफ द लूप। ओके, स्टार्टिंग जब हुई है तब ये हुआ है। ठीक है, और ये कंडीशन एग्जीक्यूट ट्रू होने से, इसको मैं यहाँ से अलग कर देता हूँ, ये अलग पार्ट है। तो यहाँ पे इसको इंसर्ट करते हैं, ये हमारे पास कंडीशनल पार्ट है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे करते हैं, इसको हम इधर ही करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इनिशियल पार्ट है, ये है हमारा कंडीशनल चेक। ठीक है, ये यहाँ पे कंडीशनल चेक हो रहे हैं, और तो यहाँ पे इसको हम पूरा इसमें एक कर लेते हैं। और ये जो लास्ट पार्ट है, ये लास्ट पार्ट है, ये एग्जीक्यूट हो रहा है आफ्टर कंडीशन इज ट्रू। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद जो हो रहा है वो सारा पार्ट यहाँ पे हो रहा है। तो कंडीशन ट्रू होने के बाद जो कैलकुलेशन हुआ वो यहाँ पे आया, फैक्ट वैल्यू की वैल्यू 5 और नम की वैल्यू 4। ठीक है, अब सेकेंड राउंड में आ गया, तो यहाँ पे हम राउंड लिख लेते हैं, ये है एग्जीक्यूशन राउंड। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन राउंड है हमारे पास। तो हाँ, एग्जीक्यूशन का पहला राउंड था ये। अब सेकेंड राउंड में क्या होगा, फर्स्ट राउंड में नम की वैल्यू क्या हो गई, 5, और फैक्ट वैल्यू की वैल्यू यहाँ पे 5 5 हो चुकी है।
नम की वैल्यू 4, फैक्ट वैल्यू की वैल्यू 5। अब कंडीशन क्या चेक होगी? 4 इज ग्रेटर देन 1। तो ये हमारे पास अभी भी ट्रू है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? फैक्ट वैल की वैल्यू क्या है? फैक्ट वैल की वैल्यू हमारे पास 5 और नम की वैल्यू है 4, ये मल्टीप्लाई होकर 5 आ जाएगा। ये यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे इसका नंबर फॉर्म है। यहाँ पे हम 5 - 1 इसका फॉर्मेट यहाँ पे कर देते हैं। ये फॉर्मेट ये गड़बड़ क्यों आ रहा है? 5, यहाँ पे फॉर्मेट, फॉर्मेट, नो नंबर, नो नो डेट, यहाँ पे ओनली नंबर। तो यहाँ पे हमने दिया 5 - टेक्स्ट, 5 - ठीक है, यहाँ पे 5 - 1 हुआ। अब ऐसे यहाँ पे क्या हो गया? 4 - 1। ये कॉलम ही गड़बड़ है। यहाँ से फॉर्मेट उठाती है और यहाँ पे यहाँ पे हो जाएगा 4 - 1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, अब तो सेकेंड राउंड में क्या हुआ? सेकेंड राउंड में फैक्ट वैल्यू की वैल्यू 4 हो गई और नंबर की वैल्यू 3 हो गई। अब थर्ड राउंड में क्या हुआ? थर्ड राउंड में यहाँ पे स्टार्टिंग में आप उसकी वैल्यू 3 है और ये वैल्यू है 20। अभी यहाँ पे क्या चेक होगा? 3 इज ग्रेटर देन 1। कंडीशन यहाँ पे फिर से ट्रू हुई। यहाँ पे क्या लगेगा? आप 20 फैक्ट वैल्यू की वैल्यू है और नम की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे 60 आ जाएगा और अब यहाँ पे होगा 3 - 1, यहाँ पे 2 हो गया। अब फोर्थ राउंड में क्या होगा? फोर्थ राउंड में अब यहाँ पे ये वैल्यू क्या है? 2 आ गई, ये वैल्यू 60 हो गई। राइट, अभी 2 इज ग्रेटर देन 1, ये भी अभी ट्रू है। टू दिस इज ग्रेटर देन 1, ट्रू। और अब यहाँ पे क्या किया? 60 × 2, तो ये हो गया 120 और लास्ट में क्या होगा? 2 - 1, तो यहाँ पे हो गया 1। अब फिफ्थ राउंड में क्या हुआ? अब फिफ्थ राउंड में क्या हुआ? यहाँ पे फिफ्थ राउंड में ये वैल्यू आ गई 1, ये वैल्यू आ गई 120। अब यहाँ पे 1 ग्रेटर देन 1। अब यहाँ पे क्या हुआ? ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स होते ही अब आगे के एग्जीक्यूशन नहीं होंगे। राइट, और आपकी जो फाइनल वैल्यू यहाँ पे फैक्ट वैल में क्या आई है? पूरा लूप खत्म होने के बाद फैक्ट वैल की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे 120 हो गई। तो वही 120 हमें यहाँ पे इसने प्रिंट करके दिखा दिया। क्लियर है सबको ये प्रोसेस क्लियर है सबको? हाँ जी सर। उत्सव, राज, जी सर। उत्सव, राज, आपको क्लियर है? जी सर। ओके, तो इस तरह से आप अपने लूप्स को एग्जीक्यूट करा सकते हो। यही इसी के साथ में आप यही प्रोग्राम है, फैक्टोरियल का प्रोग्राम है। ये आप डिक्रीजिंग लूप में भी बना सकते हो। तो अभी जैसे यहाँ पे हम ये डिक्रीजिंग लूप में बनाया हुआ है, आप इंक्रीजिंग लूप में भी बना सकते हो। तो इंक्रीजिंग लूप में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस उल्टी स्टार्ट करनी पड़ेगी। राइट, तो लेट मी शो यू कि वो कैसे बनाएंगे। फिर से हम यहाँ पे नम नम इज इक्वल टू num2 ले लेते हैं। num2 इज इक्वल टू इंटीजर input, enter the number for factorial। ओके, और यहाँ पे हमने दिया वैल। सबको यहाँ पे सिर्फ वैल ही ले लेते हैं। वैल इज इक्वल टू और 1 भी ले लिया। अब यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या होगी?
यहाँ पे हमारी कंडीशन होगी भाई, और यहाँ पे हमने दिया आई, यहाँ पे हमें हमने दिया, हाँ, आई इज लेस देन और इक्वल टू num2। अब यहाँ पे इसकी स्टार्टिंग से पहले हमें एक एक्स्ट्रा वेरिएबल देना पड़ेगा, आई इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमें लूप स्टार्ट करना है, लूप हमारा आई पे चलेगा, एक एडिशनल चीज चाहिए होगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने आई इज लेस देन num2, और फिर यहाँ पे हमने किया फैट, सॉरी, वैल इज इक्वल टू वैल इनटू, और यहाँ पे हमने दिया आई। और फिर हमने यहाँ पे दिया आई प्लस इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहाँ पे हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट ट्यूटोरियल ऑफ दिस इज दिस, और यहाँ पे फॉर्मेट हमने दे दिया num2 और वैल। ओके, अब हम यहाँ पे इसको प्रिंट कराते हैं 5, तो इसमें इसमें देखो प्रिंट कर दिया। थोड़ा सा मैंने कंसेप्ट उल्टा कर दिया, चेंज किया है। तो यहाँ पे हमारा जो लूप था डिक्रीजिंग लूप था, जो जो भी नंबर दिया है वहां से लूप चलेगा और 1 तक जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, उल्टा किया है, अब 1 से हम लूप स्टार्ट करेंगे और जो भी नंबर दिया है वहां तक जाएगा। तो दोनों तरीके हैं, एक किसी भी काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पे फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के दो तरीके थे, दोनों मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। तो इसमें भी जस्ट उल्टी प्रोसेस होगी। उल्टी प्रोसेस में 1 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 आएगा पहली बार में, फिर 1 इंटू 2 आ जाएगा, फिर 2 इंटू 3 आ जाएगा, फिर 3, तो इस तरह से 2 इंटू 3 इज 6, फिर 6 इंटू 4 आ जाएगा 24, एंड 24 इंटू 5 120, और उसके बाद ये लूप टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज? ये बातें सबको समझ में आ रही हैं? आप समझ पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? जी सर। सी, लूपिंग पे मैं ज्यादा एम्फेसाइज इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज लूपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रोग्रामिंग करने जा रहे हो तो लूप के लिए आपको बहुत समझदारी से काम लेना होता है, और बहुत अच्छे से, बहुत ज्यादा यूज होता है। और आपकी लॉजिकल बिल्डिंग एबिलिटी भी लूप की अंडरस्टैंडिंग पे ही डिपेंड करती है। तो इसलिए डू नॉट टेक दिस पार्ट लाइटली। अगर आप इंटरव्यूज वगैरह के लिए भी जाओगे, तो इंटरव्यूज में भी जो सबसे ज्यादा लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं वो लूप से ही होते हैं, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। इट्स नॉट जस्ट द पाइथन, एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू प्रेफर, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस उसमें लूप से ही होंगे। सो बी विजिलेंट विद दिस एंड अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपरली। इसीलिए मैं 2-3 सेशन लगा के इसमें आराम से ये सारी चीजें कवर करूंगा। तो लास्ट सेशन भी हमने लूप का इंट्रोडक्शन किया था। आज का पूरा सेशन और कल का पूरा सेशन हम लूप पे ही देने वाले हैं, तो 2 से 3 क्लास में, जिससे आपकी लूप की अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। अब इसके बाद आता है दूसरे दूसरे टाइप का लूप होता है, जिसको हम बोलते हैं लूप। ठीक है, ऊपर हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास कितने टाइप के लूप होते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था व्हाइल लूप, तो व्हाइल लूप हमने ऑलरेडी देख लिया। अभी है हमारे पास फॉर लूप। ठीक है, फॉर लूप क्या करता है? अब सिंस ये भी एक लूप है, राइट, ये कोई नई चीज नहीं है, तो विल हैव सेम कंपोनेंट्स। ठीक है, ये भी सेम कंपोनेंट्स फॉलो करेगा, लाइक इनिशियलाइजेशन, देन कंडीशन, एंड देन लूप्स। ये तीनों चीजें ये फॉलो करेगा, इसमें भी होंगे। दुनिया के किसी भी लूप में चले जाओ, इट्स नॉट जस्ट फॉर लूप और इन पाइथन लूप्स। आप दुनिया की किसी भी लैंग्वेज में कोई भी लूप आप लगाने चलोगे, तो ये 3 कंपोनेंट आपके मेन कंपोनेंट होंगे ही होंगे। तो आपको वो यहाँ पे करना ही है। थोड़े से यहाँ पे एडिशनल एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर सपोज आपके पास कोई लिस्ट है, हमारे पास माई लिस्ट करके हमने यहाँ पे बनाया, माई लिस्ट इज इक्वल टू 10, 20, 30, 40, 50, राइट। तो अब हमने यहाँ पे ये लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट अब इस लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को हमें आपस में ऐड कराना है।
तो हम कैसे ऐड कराएंगे? हम कैसे ऐड कराएंगे? यही चीज मान लो अगर हमें व्हाइल लूप में करनी है तो हम कैसे करेंगे? अगर यही चीज हमें व्हाइल लूप में करनी है तो हम कैसे करेंगे? सिंपली पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहां से स्टार्ट करना पड़ेगा सम करने के लिए, राइट? तो लेट मी शो यू कि हम इसको व्हाइल लूप में कैसे करेंगे। फिर हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिया माई लिस्ट इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने लिया 2 3 4 5 6, ठीक है, इतना हमने ले लिया। अगर इसको हमें वाइल लिस्ट में करना है, वाइल लूप में करना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे टोटल दिया, टोटल इज इक्वल टू 0 से हमने इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे हमारी प्रोसेस स्टार्ट होगी, तो हमने यहाँ पे आई को भी हमने जीरो से इनिशियलाइज किया। फिर इसके बाद भाई आई इज लेस देन और लेस देन लेंथ ऑफ माई लिस्ट, राइट? और यहाँ पे टोटल प्लस इज इक्वल टू माई लिस्ट ऑफ आई, ठीक है। और यहाँ पे फिर आई प्लस इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे हमने दिया प्रिंट टोटल ऑफ द माई लिस्ट एलिमेंट्स इज, और यहाँ पे हमने दे दिया टोटल, राइट? तो इसने यहाँ पे दिखा दिया कि सब इन सबका टोटल है 20। आप यहाँ पे कोई कोई भी नंबर चेंज करके देख सकते हो, ये इसको भी यहाँ पे दिखाएगा। 20 दे दिया, फिर 40 दे दिया, ठीक है, दो छोटे छोटे चेंज कर दिए। तो नाउ ही इट हैज शोन द डिफरेंट टोटल, राइट? सो ये हमने इसको प्रिंट किया, लिस्ट के एलिमेंट को हमने प्रिंट किया है, लिस्ट के सारे एलिमेंट को हमने प्रिंट किया है यूजिंग व्हाइल लूप। यही चीज जब हम यहाँ पे फॉर लूप में लगाएंगे, तो फॉर लूप में एक एडिशनल एडवांटेज होती है। वो एडिशनल एडवांटेज क्या होती है कि हमें यहाँ पे लेंथ फंक्शन को यूज नहीं करना है, ठीक है। सिंपली हमने यहाँ पे दिया, हमने यहाँ पे सम या टोटल, टोटल 1 इज इक्वल टू हमने 0 इनिशियलाइज कर लिया, जो कि हमने पहले भी किया था। देन फॉर मेंबर्स इन माई लिस्ट, और यहाँ पे हमने दिया तो टोटल 1 प्लस इज इक्वल टू टोटल 1, सॉरी, इसमें माई 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 लिस्ट ऑफ मेंबर्स, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पे इसको उठा के हमने बस रख दिया है, और माई लिस्ट ऑफ मेंबर्स की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ मेंबर्स ही देना होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर प्रिंट टोटल ऑफ दिस लिस्ट इज, और यहाँ पे हमने दे दिया टोटल 1, राइट? हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, तो इसमें यहाँ पे सबका टोटल हमें करके दे दिया कि सबका टोटल है 150, राइट? तो इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है? अभी ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि इसमें और इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है। हमने एक ही प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम को हमने यहाँ पे व्हाइल लूप से भी बनाया है, और वही प्रोग्राम हमने फॉर लूप से भी बनाया है, राइट? अब बताओ दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? देखो कंपोनेंट तो सब में सेम ही है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, लूप्स, राइट? तो फॉर लूप में देखो यहाँ पे ये इनिशियलाइजेशन दिख रहा है हमें, ये कंडीशन दिख रही है, और ये हमें यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दिख रहा है, ठीक है। सॉरी, दिस इज नॉट लूप, दिस इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे हमारा इनिशियलाइजेशन है और कंडीशन, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ पे है? कहीं पे दिख रहा है? कहीं पे दिख रहा है आपको? इनिशियलाइजेशन कहाँ पे दिख रहा है? एनीवन? राज, आरती, चिंकी, उत्सव? सर नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा है ना, लेकिन फिर भी आंसर तो आ रहा है, हाँ जी सर। आंसर तो सही आ रहा है, राइट? सो क्या होता है
जब आप यहाँ पे फॉर लूप में काम करते हो तो कुछ चीजें यहाँ पे ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो जाती हैं। सो बेसिकली फॉर लूप ऑटो initialize the process starting from zero, राइट। ये अगर कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली जो प्रोसेस है उसको जीरो से अपने आप से इनिशियलाइज कर देता है, एज्यूमिंग की प्रोसेस जीरो से स्टार्ट हो रही है। तो 99.9999999% में प्रोसेस जीरो से ही स्टार्ट हो रही होगी, तो इसलिए वो उसने वहां से स्टार्ट कर दिया। ठीक है। देन तो ये तो हो गया इनिशियलाइजेशन। अब कंडीशन, यहाँ पे ये जो पार्ट देख रहे हो ये कंडीशन की तरह काम कर रहा है। अब इसमें कंडीशन क्या है, यहाँ पे मेंबर्स इन माय लिस्ट, राइट। अब यहाँ पे आप केवल मेंबर्स नहीं, आप कुछ भी दे सकते हो। सपोज अगर हमने यहाँ पे एक्स वाई जी दे दिया और यहाँ पे भी हम अगर एक्स वाई जी करते हैं तो भी हमारे पास नाम, हमारे पास जो टोटल है वो एज इट इज आएगा। सपोज हमने यहाँ पे इसको 50 के साथ 60 फिर 70 ये भी कर दिया, यहाँ पे अभी टोटल हमारा 280 आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप नाम कुछ भी दे सकते हो, तो वो मेंबर्स करके हमने यहाँ पे दिया था, उसका कोई खास मीनिंग नहीं है, बस वो इंडिकेट करने के लिए। अब जो भी वेरिएबल हम यहाँ पे डालते हैं, जो भी नाम डालते हैं, ये इस लिस्ट के अंदर एसोसिएट हो जाता है इसकी इनिशियल पोजीशन पे। ठीक है। तो जैसे ही हमने यहाँ पे डाला मेंबर्स इन माई लिस्ट, ये अटैच हो गया इसकी इनिशियल पोजीशन के साथ में। तो अगर हम यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करेंगे तो माई लिस्ट कहीं ना कहीं स्टोर हो रही होगी जाके, तो माई यहाँ पे प्रिंट आईडी ऑफ माई लिस्ट अगर हम देखते हैं तो ये कहीं ना कहीं स्टोर हुई है जाके। ठीक है। और अगर हम यहाँ पे सपोज एक ही नंबर रखते हैं, हमने अगर एक ही नंबर रखा तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसकी और मेंबर्स, ठीक है, दोनों की आईडी हम यहाँ पे चेक करते हैं तो ये देखो इनिशियल में, चलो यहाँ हम यहीं पे प्रिंट कराते हैं। तो हमने दिया प्रिंट आईडी ऑफ मेंबर्स। ठीक है, यहीं पे प्रिंट कराते तो हर बार हमें यहाँ पे लग जाएगा कि ये कहाँ पे है। यहाँ पे प्रिंट माई माई लिस्ट ऑफ, केवल जीरो के लिए ही हम प्रिंट करा रहे हैं, बाकी के लिए हम प्रिंट नहीं कराएंगे, नहीं तो फिर वो प्रोसेस कंफ्यूजिंग हो जाएगी, वो अपने आप में प्रोसेस गलत हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि मेंबर हर बार मूव करेगा। तो यहाँ पे हम केवल पहली बार वाला ही फोकस करेंगे, बाकी की चीजें फोकस नहीं करेंगे। तो हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, सॉरी, आई डी। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देखो, जब यहाँ पे ये वैल्यू आई माई लिस्ट ऑफ जीरो, ठीक है, तो यहाँ पे इसने जब पहली बार में प्रिंट किया तो जो जहाँ पे ये जीरो स्टोर हो रहा है, जिस लोकेशन पे ये जीरो स्टोर हो रहा है उसी लोकेशन को ये मेंबर भी रिफर कर रहा है, तो ये इनिशियल लोकेशन पे स्टोर हो गया। आगे की अगर आप चीज देखेंगे 20 30 40 50 60, अगर हम आगे की चीजें यहाँ पे डाल के देखते हैं तो यहाँ पे देखो, हर बार जो आपका ये है, ये तो यहीं पे है, ठीक है, लेकिन ये वाली वैल्यू यहाँ पे देखो चेंज हो गई, ये 64 पे चली गई, फिर ये 84 पे चली गई, फिर 04 पे, फिर 24 पे, फिर 24 पे। वो हर बार ये वैल्यू चेंज हो रही है, क्योंकि ये हर बार यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, इस तरह से यहाँ पे ये सारी वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहा है। ठीक है। तो मेंबर्स बेसिकली हर नंबर के साथ में एसोसिएट हो रहा है। तो स्टार्टिंग में ये पहले नंबर के साथ में एसोसिएटेड था, जब लूप आगे बढ़ेगा तो ये दूसरे नंबर के साथ में एसोसिएट हो जाएगा, जब फिर लूप आगे बढ़ेगा तो तीसरे नंबर के साथ में एसोसिएट हो जाएगा। तो इस तरह से वन बाय वन वो प्रोग्रेसिव वे में चलता जाएगा। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये आपको प्रोग्राम में लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे समझने के लिए है।
क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप और तीसरा पार्ट आता है इसमें, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो जैसे ही ये अपने लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, तो लास्ट स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के बाद ऑटोमेटिकली ये एक इंक्रीमेंट कर देगा। अब इसको पता है कि इसको लिस्ट पे काम करना है, तो लिस्ट में जो एलिमेंट्स है वो जीरो से स्टार्ट होंगे और आगे की तरफ जाएंगे, नेक्स्ट मूव, ये आगे की तरफ मूव होंगे, राइट। सो इसमें फॉर लूप में तो ऑटो इंक्रीमेंट इज डन। एक मेंबर का ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट किया जाता है। अगर आप यहाँ पे इंक्रीमेंट अपनी तरफ से लगाते हैं तो फिर ये यहाँ पे डबल इंक्रीमेंट हो जाएगा और वो सही प्रोसेस नहीं करेगा, इसलिए उसका ऑप्शन भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है सबको? यस सर। तो ये आपकी ऑटो इंक्रीमेंट की प्रोसेस फॉर लूप के साथ में होती है। ठीक है, अब इसमें आता है एक रेंज फंक्शन आता है, रेंज फंक्शन। रेंज फंक्शन क्या करता है? तो बेसिकली इसमें वेरिएशन होते हैं, तो जो सिर्फ रेंज फंक्शन होता है इसमें क्या होता है, अगर यहाँ पे इस तरह दिया रेंज और 5 दे दिया, तो ये स्टोर कर देगा 0,1,2,3,4। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली उसमें स्टोर कर देगा। तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे लिया मेरी लिस्ट इज इक्वल टू रेंज ऑफ 5, हमने यहाँ पे दे दिया, और अगर हम यहाँ पे प्रिंट कराते हैं मेरी लिस्ट, राइट, तो यहाँ पे 0 to 5 प्रिंट, 5 वैल्यूज ये प्रिंट कर रहा है। ठीक है, ये सारी वैल्यूज को अपने आप यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेगा। तो अगर हमें यहाँ पे इसी तरह से कुछ नंबर 0 to 5 या 0 to 10 सारे नंबर ऐड कराने हैं, राइट, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली सिंपली यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर एलिमेंट्स इन रेंज, और सपोज हमने 6 दे दिया, और यहाँ पे हमने दिया कि प्रिंट, और हमने यहाँ पे एलिमेंट्स को प्रिंट करा देते हैं, 1 by 1 प्रिंट कराते हैं, और हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, तो अभी देखो इसने ये सारे नंबर प्रिंट कर दिए। ठीक है, हमने रेंज 6 तक दी है, तो यहाँ पे 0 to 5 इसने सारे नंबर प्रिंट कर दिए। क्लियर है सबको? यस सर। तो बेसिकली ये कुछ नहीं कर रहा है, ये एक एरे क्रिएट कर रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to द गिवन नंबर -1, उसको यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अगर आप यहाँ पे रेंज वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हो तो इंडिविजुअली आप प्रिंट नहीं कर सकते। इसमें दूसरा वेरिएशन आता है, रेंज के दूसरे वेरिएशन में आता है रेंज, इसमें दूसरा आता है रेंज ऑफ, फॉर सपोज स्टार्ट ऑफ एंड फिफ्थ। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे दे दिया फॉर एलिमेंट्स इन रेंज, और हमें इसको स्टार्ट करना, सपोज 5 से स्टार्ट करना है और 25 पे स्टॉप करना है, और 5 से 25 के बीच में हमें सारे नंबर प्रिंट कराने हैं, या 5 से 25 के सारे नंबर हमें 3 3 के गैप पे प्रिंट कराने हैं, तो हम यहाँ पे 3 दे दिया, 3 3 के गैप पे चाहिए, और फिर हम यहाँ पे दिया प्रिंट और एलिमेंट, राइट। तो अभी आप यहाँ पे देखो, इसने 3 3 के गैप पे सारे नंबर प्रिंट करा दिए, 5 8 11 14 17 20 एंड 23। ठीक है, तो उसने 1 by 1 सारे नंबर्स को इस रेंज में प्रिंट करा दिया। तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम दिस, गो विल टिल दिस वैल्यू -1। ठीक है, यहाँ पे जहाँ भी रेंज वगैरह कुछ भी यूज हो रही है, वहाँ पे वो उसके एक पहले तक ही जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे -1 तक होगा। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे हम 5 कर देते हैं, तो ये 25 पे नहीं जाएगा,
ये 20 पे ही इसने एंड कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी जो प्रोसेस है वो 24 पे ऑलरेडी टर्मिनेट हो चुकी होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यूज को रेंजेस में भी प्रिंट करा सकते हैं। आपके पास कोई लिस्ट है, आपको उसको प्रिंट कराना है, तो सिंपली आप यहाँ पे माई लिस्ट करके दे सकते हो। जस्ट इसमें आपने दिया, बस कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बहुत ज्यादा डालने की जरूरत नहीं, सिंपली आप इसको यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे जब हम व्हाइल लूप लगाते हैं तो व्हाइल लूप में हमारे पास हम और भी तमाम काम करा सकते हैं। तो इसमें जैसे हम फैक्टोरियल का नंबर कैलकुलेट कराते हैं, तो रियल यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो वो हमने वहां पे व्हाइल लूप में देखा था, अब यहाँ पे हम फॉर लूप में हम प्रिंट कराते हैं। तो फॉर लूप में सिंपली यहाँ पे क्या करना होगा हमें फॉर लूप में, पहले तो यूजर से नंबर लेना होगा। तो नम इज इक्वल टू इंटीजर एंड इनपुट एंटर द नंबर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल के नंबर तो हमने यहाँ पे लिया। अब इसके बाद फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जो हमारा वैल करके वेरिएबल था इसको हमने वन से इनिशियलाइज किया। फिर फॉर आई फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे हमें दिया। अब यहाँ पे हम रेंज दे सकते हैं, रेंज जो भी हमारा वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर रेंज वैल्यू हो तो हमने यहाँ पे दे दिया नम प्लस वन। हमने यहाँ तक दे दिया रेंज नम प्लस वन, और फैक्ट अंडरस्कोर वैल इज इक्वल टू मल्टीप्लाई इज इक्वल टू आई। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करा दें फाइनल फैक्टोरियल। ठीक है, और ये है हमारे पास फैक्ट अंडरस्कोर वैल। फिर यहाँ पर हमने फाइल दिया, फाइनल फैक्टोरियल 0 है, फैक्ट वैल इक्वल टू नम 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 0। यहाँ पे फाइल है, ये स्टार्ट होगा। ओके, सॉरी, यहाँ पे हमें स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे 0 क्यों है, ये मैं अभी रीजन बताता हूँ। तो नम प्लस वन, तो यहाँ पे अभी इसने इसने सही दे दिया। ठीक है, हमने जो प्रीवियस वेरिएशन यूज किया था तो उसमें क्या था, आप यहाँ पे देखोगे तो अगर हम यहाँ पे रेंज 5 हम देखते हैं तो यहाँ पे ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये 0 से होता है। जब ये 0 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पे ये जो कैलकुलेशन कर रहा था इन सबको 0 बना रहा था, और इसलिए यहाँ पे फाइनल फैक्टोरियल की वैल्यू 0 आ रही थी। तो हम यहाँ पे वो वाला वेरिएशन नहीं, हम ये वाला वेरिएशन यूज करेंगे। और आई इन रेंज 1 से स्टार्ट होके नम प्लस वन तक जाएगा, और जो इंक्रीमेंट होगा 1/1 होगा। राइट, तो इस तरह से हम यहाँ पे जो भी कैलकुलेशन है वो अलग अलग तरीके से, एक ही चीज को देखो हमने अलग अलग तरीके से कराया। वही प्रोग्राम मैंने व्हाइल लूप में इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के फॉर्म में बनाया, और वही चीज हमने यहाँ पे फॉर लूप में भी बना दी। इसी को आप डिक्रीजिंग लूप में भी, यहाँ पे ये इंक्रीजिंग लूप है, आप इसको डिक्रीजिंग लूप में भी कर सकते हो। तो डिक्रीजिंग लूप में करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, ये यहाँ पे ये नम कर दिया, और दिस इज नहीं, रेंज में ये काम नहीं करेगी ये चीज। ये दिस विल नॉट वर्क इन रेंज, क्योंकि रेंज हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही काम करती नहीं कर जाएगी यार। लेट मी चेक। तो यहाँ पे हमने इसको नम से स्टार्ट किया और हम इसको 1 तक ले गए। यहाँ पे हमने स्टेप -1 किया है, तो यहाँ पे हमने इसको रन किया 120
यहाँ पे ये चीज काम नहीं कर रही है, सॉरी 5 देना है हमें। हाँ काम कर तो रही है, वहाँ पे 120, अच्छा 120 मैंने पहले ही दे दिया था तो उसका फैक्टोरियल दिखा रहा था। ठीक है काम कर गई। तो यहाँ पे हमने इसको डिक्रीमेंट लूप में कर दिया, सिंपली यहाँ पे नम एंड 1 कर दिया, इनको हमने एक्सचेंज कर दिया, तो यहाँ पे -1 कर दिया। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप अपनी जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं और आउटपुट को समझ सकते हैं। ये चीज क्लियर हो रही है सबको कि कैसे इजी तरीके से आसानी से हम सारी चीजें प्रिंट करा सकते हैं? सबको क्लियर है? यस सर। सर वाइल ग्रुप वाला एक बार फिर से बता दोगे? व्हाइल वाले में देखो, व्हाइल वाला लास्ट क्लास में बताया था, आज मैं फिर से बता देता हूँ। तो व्हाइल में क्या होता है कि हमें सारे जो इनिशियलाइजेशन है, इंक्रीमेंट है, वो सारी चीजें स्पेसिफिकली डिफाइन करनी पड़ती हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें यहाँ पे एक टेबल बनानी है, तो टेबल बनाने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं। एक ये है कि हमने यहाँ पे यूजर से नंबर लिया और फिर यहाँ पे हमने इस तरह से लिखा num_1, num_2, num_3, num_4, वो वही हमने प्रिंट करा दिया। ठीक है, तो बार बार क्या हो रहा है, हम एक ही स्टेटमेंट को बार बार यहाँ पे हम रिपीट कर रहे हैं, राइट। अब यहाँ पे इस वाले पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट में हमने वही प्रोसेस लूप के थ्रू लगाई है। तो अब इसमें क्या किया, अब हमें पता है कि हमें अगर टेबल प्रिंट करानी है तो टेबल की का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि जैसे मान लो 8 स्टार्ट किया तो 8 1 आर 1, 8 2 आर 2, तो 1 से अगर स्टार्ट होगा और 10 तक जाएगा तो हमें हमारी जो इनिशियलाइजेशन है वो यहाँ पे हो गई। ठीक है, 1 पे इनिशियलाइजेशन हुई। दूसरा पार्ट होता है डेस्टिनेशन, कहाँ तक जाना है, तो हमें 10 तक जाना है, तो ये हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि हमें 10 तक जाना है, राइट। अब यहाँ पे क्या करना है, नम इंटू काउंट की वैल्यू। ठीक है, नंबर इंटू काउंट की वैल्यू, तो पहली बार 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, दूसरी बार में काउंट +1 प्लस इज इक्वल टू 1, तो अब यहाँ पे काउंट की वैल्यू 2 हो गई। और फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी तो ये कंडीशन अभी भी इसको ट्रू मिली। अब इस पे आएगा, अब नम की वैल्यू क्या हो गई है ऑलरेडी 1, नम की वैल्यू ऑलरेडी क्या है हमारे पास, सपोज यहाँ पे अगर 8 दिया है तो 8 यहाँ पे वैल्यू होगी, और काउंट की वैल्यू हो गई है 2, तो 8 × 2 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे अगर फिर से एक एक बार और कर दिया तो 8 × 3 हो जाएगा, फिर 8 × 4 हो जाएगा। तो इस तरह से 1 बाय 1 हम सारे पार्ट्स को इसमें इनिशियलाइज करा के देख सकते हैं। इज इट क्लियर नाउ चिंकी? यस सर। ठीक है, तो इस तरह से आप लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, एक ही चीज को मल्टीपल तरीके से आप इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो और अपनी चीजों पे वर्कआउट कर सकते हो। अभी इसमें और भी छोटे छोटे एग्जांपल्स हैं, वो हमें देखने बाकी हैं। बट बिफोर गोइंग थ्रू दैट दोज एग्जांपल्स, अभी यहाँ पे हमने लिस्ट को देखा है, लिस्ट की तरह आप यहाँ पे टपल को भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने वेल बनाया, टप वेल, और इसमें हमने यहाँ पे डाल दिया यहाँ पे 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे अगर हमें लेंथ ऑफ टपल फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ टप वेल। ठीक है, और यहाँ पे इसको फाइंड आउट करेंगे तो इसने हमें लेंथ दे दी। हमें लेंथ की जरूरत नहीं, बट मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली फॉर मेंबर्स इन टप वेल, और यहाँ पे अब इनका इनका सबका हमें सम करना है। तो सम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने यहाँ पे किया टोटल इज इक्वल टू टोटल टोटल प्लस इज इक्वल टू, और यहाँ पे हमने दे दिया मेंबर्स, और लास्ट में हमने प्रिंट कराया प्रिंट फाइनल टोटल, और यहाँ पे हमने कॉमा के साथ में टोटल को प्रिंट करा दिया। तो हमने यहाँ पे रन कराया, तो यहाँ पे इसमें देखो हमने दे दिया तो हमारा फाइनल टोटल क्या है। तो फाइनल टोटल कुछ ज़्यादा नहीं लग रहा है, 8 7 15 15 6 21 5 26 26 एंड 4 30 एंड 3 33, तो 107 कैसे आ रहा है? ओके, तो
कोई बता सकता है यहाँ पे 107 कैसे आ रहा है? कोई बता सकता है यहाँ पे 107 कैसे आ रहा है? एनी आइडिया? आरती, राज, चिंकी? तो लेट मी टेल यू, इसका जो एक्चुअल टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 8, 7, 15, 6, 21, 5, 26, 4, 33, 33। एक्चुअल टोटल यहाँ पे 33 आना चाहिए, लेकिन 107 आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने पहले भी यहाँ पे एक टोटल वेरिएबल यहाँ पे हम टोटल कर रखा था, तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 74 है। ठीक है, और हमने यहाँ पे दिया है टोटल प्लस इज इक्वल टू दिस, तो यहाँ 74 से आगे वो कैलकुलेट कर रहा है, इसलिए 107 आ रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम यहीं पे हम इनिशियलाइज कर देते हैं टोटल इज इक्वल टू 0। ये इस प्रोग्राम के लिए अब हो जाएगा, राइट। हमने यहाँ पे अब इसको रन कराया तो यहाँ पे हमें सही वैल्यू मिल गई। तो एक ही इन्वायरमेंट में अगर आपने एक कोई वेरिएबल बार बार रिपीट किया है तो आपको ध्यान रखना होगा कि उसकी वैल्यू क्या है और उसको आप कैसे यूज करोगे। रिपीट कर रहे हो तो ये सारी चीजें किस करनी पड़ेगी आपको। इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्लियर है? तो यही चीज आप टपल में भी आप जैसे हमने अप्लाई कर ली। अब ये चीज आप इस तरह से आप सेट में या डिक्शनरी में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे वो ऑर्डर सीक्वेंस नहीं है, वहाँ पे जो इंडेक्सिंग है वो सपोर्ट नहीं करेगी। इस वजह से आप वो चीज वहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। ओके, तो आज हम इतना ही रखते हैं। अब इसमें छोटे छोटे कुछ इम्प्लीमेंटेशंस और हैं जो मैं आपको करके दिखाना चाहूंगा, बट यू कैन हैंड्स ऑन विद ऑल दीज टॉपिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग के लिए। आप जब करोगे तो लूपिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, तो प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, जिससे आपको इसमें कॉन्फिडेंस आए। आई विल शेयर दिस फाइल अगेन right after the class so that you can have a look at it. Okay, so we'll keep it at this for today, and we'll meet tomorrow morning sharp at 8. Okay, thank you everyone.